न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, PSJ TVS। मेयर का पदभार संभालते ही विधान उपाध्याय एक्शन में आए। गारुई नदी का संस्कार के लिए सृष्टि नगर से लेकर रेलपार तक दौरा कर लिया जायजा। বৃষ্টির জলের থেকে বাঁচানোর জন্য আমাদের যা করার দরকার আছে আমরা করব। যে वार्ड 41 के TMC काउंसलर जीतू सिंह के खिलाफ थाने में शिकायत। आर्य कन्या स्कूल में हंगामा और मारपीट का आरोप। 15 लाख रुपए करके उनको टीचर का नौकरी मिला। द्वारे सरकार में आए युवक लाइन में लगने के दौरान चक्कर आने से गिरा। दुर्गापुर के कांकसा में हार्डवेयर गोदाम में लगी आग, 15 लाख का सामान जलकर खाक। तृणमूल कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के घोषणा पत्र में गरुई नदी के सफाई के लिए प्राथमिकता देने के वादे को निभाते हुए शुक्रवार को आसनसोल नगर निगम के नए मेयर विधान उपाध्याय ने भावी उपमेयर अभिजीत घटक और वसीम उल हक, पार्षद अनिर्वाण राय, डॉक्टर देवाशीष सरकार, निगम अभियंता सृष्टि नगर और आसनसोल रेल पार्क के कई इलाकों में गरुई नदी का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि गरुई नदी के जमीन पर अतिक्रमण के कारण पाट छोटा हो गया है, जिससे बरसात के दिनों में यह नदी रेल पार इलाके में बाढ़ उत्पन्न कर देती है। आसनसोल के अन्य इलाकों के नागरिकों का जनजीवन भी प्रभावित होता है। अब तक लोग रेल पार इलाके में ही गरुई नदी पर कब्जा करने को लेकर चिंतित थे, लेकिन मेयर ने निरीक्षण के दौरान पाया कि पौष इलाके सृष्टि नगर में भी गरुई नदी के जमीन पर कब्जा किया गया है। इसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। निरीक्षण करने के बाद मेयर विधान उपाध्याय ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया। প্রথমত হচ্ছে আমি যেটা প্রথমে বললাম যে জায়গাটাকে আমরা দেখতে হবে, ওর এর গারুই নদী কতটা জায়গা আছে না আছে, কোন দিকে আছে। এখন আমরা যেটা দেখলাম যে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট হয়ে গেছে, সেই ছোট জায়গাগুলোকে যাতে বড় করা যায় এবং এর পুরো প্রথমে ডিটেলস আমাদের নিতে হবে জায়গা কতটা আছে, তারপরে কিন্তু আমরা কাজটা করতে পারবো। যে জায়গাগুলো ছোট হয়ে গেছে বলছেন, তাহলে কি ওগুলো দখলদারি হয়েছে? সেটা দেখে নিতে হবে। এখন তো বলতে পারবো না, সেটা আমরা দেখবো তারপর বলতে পারবো। হ্যাঁ রাইট। বলছি যে আপনার কল্যাণপুরেও দেখা গেছে যে নদীর বুকের উপরে জাস্ট দেখলাম, আমরা ব্যবস্থা নেব। তো এই যে ফ্ল্যাটগুলো যেগুলো হচ্ছে বা দেখা গেল বাইপাসের ধারে নদীর উপরে আপনার প্রায় রাস্তা দেখা নর্থে রাস্তাতে হাইওয়ের উপরে এনক্রোচড হয়েছে। এর আগেও আন্দোলন আপনারা করেছিলেন। না সেটা দেখে নিচ্ছি। আমরা বেরিয়েছি, আমরা এখন গারুই নদী নিয়ে বেরিয়েছি। গারুই নদীর উপরে আমরা এখন ঘোরাঘুরি করছি। সৃষ্টিনগরের ভেতরটা আমরা এখন ঢুকেছি, এখন যাবো আমরা রাস্তা দিয়ে, তারপর দেখবো নিশ্চিতভাবে যেখানে এখন এই সৃষ্টিনগরের ভেতরে ঢুকলেন তো দেখলাম বিভিন্ন জায়গায়, তো বললাম ছোট ছোট হয়ে গেছে জায়গাটা, মানে যে জায়গা ছিল স্পেস ছিল সেই স্পেসটা কমে একদম ন্যারো হয়ে গেছে, একদম ছোট হয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায়। নদীর রাস্তাটাকে বুঝিয়ে দিয়ে পাইপ দিয়ে রাস্তা করা হয়েছে, দেখলে পাইপ দিয়ে জল বার করা হচ্ছে, এগুলো করা উচিত না। দেখেছি আমরা নিশ্চয়ই হ্যাঁ নিশ্চয়ই প্রয়োজনে কিগুলো ভেঙে ফেলা হবে। একদম নিশ্চিতভাবে আমরা চাইবো আসানসোলবাসীকে বৃষ্টির জলের থেকে বাঁচানোর জন্য আমাদের যা করার দরকার আছে আমরা করব, যেগুলো না আমরা সুযোগ পাবো করার। जबकि भावी उपमेयर अभिजीत घटक ने कहा कि गरुई नदी के विस्तारीकरण के लिए जो गरीब लोग नदी के जमीन पर अतिक्रमण कर लिए हैं, उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाएगी। এগুলো আমরা আস্তে আস্তে করছি, কারণ যেখানে এনক্রোচমেন্টটা তাড়াতাড়ি দ্রুত সরানো যাবে সেটা আমরা দ্রুত সরাবো। যেটা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যেটা আমাদের মেয়র সাহেব বললেন যে রিহ্যাবিলিটেশন করার ব্যাপারে, সেই রিহ্যাবিলিটেশনের ব্যবস্থা আমরা করব এবং তাদেরকে স্থানান্তর করে সেই জায়গাগুলোকে আমরা দখলমুক্ত করার চেষ্টা করব। যেখানে নদীটা কোনো সাধারণ মানুষ হয়তো এনক্রোচ করে আছে, গরিব মানুষ হয়তো অনেক জায়গা আছে, যেখানে যে কোনো জায়গাতে। Please kindly approve the admission of 2 to 3 girls who wants to study in a renowned school, but don't make us that we are giving you the pressure. We are not giving us the pressure. आसनसोल स्थित आर्य कन्या विद्यालय में शुक्रवार को तृणमूल पार्षद रणवीर सिंह भरारा उर्फ जीतू सिंह के कहने पर भी छात्राओं का नामांकन नहीं किए जाने से पार्षद अपना आपा खो बैठे। उन्होंने आर्य कन्या विद्यालय के शिक्षक प्रभारी उर्मिला ठाकुर को जमकर खरी खोटी सुनाई। इससे स्कूल में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। जीतू सिंह ने स्कूल पर कई आरोप लगाए। डायरेक्टर और मैडम भी रिजाइन करें, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, फिर चैलेंज करता हूँ। आपके मुंह से अगर गलत शब्द निकला है तो आप रिजाइन एकदम तुरंत
तुरंत मैं रिजाइन करूंगा। और वो मैडम से पूछिए आपने पूरे स्टाफ और टीचरों को क्यों बुलाया, पूरे स्टाफ और टीचर को आपने क्यों बुलाया? आपके साथ मिसबिहेव भी किया गया एकदम पूरा। सारे टीचर को बुलाने का मतलब क्या, वो मुझे घेरना। क्यों घेरा उनसे पूछिए, उनमें हिम्मत है वो मैडम से। उनका सर्टिफिकेट जो है ना, जो टीचर का, वो भी डुप्लीकेट है। मैं आपको कह देता हूँ, जाइए, उनका सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है। और जितनी टीचर यहाँ पढ़ाती है आधे से ज़्यादा का सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है। 15 लाख रुपए करके उनको टीचर का नौकरी मिला। जाइए, हिम्मत है, सुनिए, हिम्मत है आप में तो पूरा दिखाइए सबको। वहीं दूसरी तरफ आसनसोल नगर निगम के 41 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस पार्षद रणवीर सिंह भरारा उर्फ जीतू सिंह के ऊपर स्कूल की शिक्षक प्रभारी उर्मिला ठाकुर ने स्कूल में हंगामा मचाने और स्कूल कर्मी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। शिक्षक प्रभारी उर्मिला ठाकुर ने इसकी लिखित शिकायत आसनसोल दक्षिण थाना में की है। अपनी शिकायत में उर्मिला ठाकुर ने मांग की है कि पुलिस उक्त पार्षद पर कार्रवाई करे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 41 नंबर वार्ड के पार्षद अपने समर्थकों के साथ स्कूल कार्यालय में आए और उनके साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, स्कूल के कर्मचारी जगन्नाथ राम की हाथ पकड़कर मरोड़ दिए। ये सरासर गलत है और गलत इल्जाम है पूरी तरह से। हमारे विद्यालय में 2 दिन दुआरे सरकार का प्रोग्राम हुआ था और इन दोनों दिन ही वो बहुत गलत बिहेव किए हम लोगों के साथ। और 7-8 गार्जियन को लेके पिछली बार जब हुआ था दुआरे सरकार तो हमारे यहाँ आए और बोले कि 150 हम एडमिशन करवाए हैं। एक स्कूल का नाम ले रहे थे और यहाँ भी हमको कराना है, आपको करना पड़ेगा। हमारे जो वार्ड की लड़कियां हैं उनका आप एडमिशन नहीं करती हैं। इस तरह से बहुत सारा झूठ और गलत इल्ज़ाम लगाए और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप नहीं जानते हैं मैं बहुत पहुंच वाला आदमी हूं, ये सब कुछ बोले। और आज जो था, आज तो करीब 12 से 14 गार्जियन को लेकर वो आए, लेकिन इस बीच वो 2-3 एडमिशन के लिए कागज़ देकर गए थे जिसको हम लोग अपना सीट भर जाने की वजह से नहीं कर पाए और वेट कर रहे थे। उस दिन बताया भी गया था कि सीट भर चुका है, अब एडमिशन नहीं हो पाएगा, काफ़ी समय भी हो चुका है भरे हुए और पोर्टल में सारा जो काम होता है सरकारी वो सब खत्म हो चुका है। लेकिन वो भी फिर भी नहीं मान रहे और ज़बरदस्ती उनको एडमिशन कराना है। समझाने पर भी नहीं समझ रहे। इतने गार्जियन आए, समझे, चले गए, लेकिन उनको ज़बरदस्ती करवाना है और वो अपना धौंस जमा रहे हैं। हम लोग के साथ बहुत गलत बिहेव किए, बहुत उल्टा सीधा हमको भी बोला गया, हमारे सेक्रेटरी सर को भी बोला गया और हमारी जो टीचर्स आई थी उनके साथ भी गलत बिहेव किया गया। टीचर्स को इसलिए बुलाया गया ताकि टीचर सच्चाई बता सकें। वो पूरा एडमिशन प्रोसीड्योर पर ही गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे जो कि समझाया जा रहा था उनको, लेकिन वो किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिए। मैडम, वो बोल रहे थे, कान पकड़ के आपके सामने खड़ा होकर बोल रहे थे कि बच्चियों को एडमिशन करा लें, फिर भी आपने नहीं सुना। उनको तो समझाया जा चुका है कि हम लोगों का सीट भर चुका है और अब एडमिशन हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी भर जाने के ऊपर भी ओवर हो चुका है बहुत सारा। तो इस साल अब हम लोग एडमिशन नहीं कर पाएंगे। उनको समझाया गया था क्योंकि वो बहुत देर से आए, वो अगर समय से आते तो फिर देखा जा सकता था, लेकिन वो इस चीज़ को मान ही नहीं रहे हैं। उनको ज़बरदस्ती एडमिशन कराना है, धौंस दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी एक स्टाफ के साथ मारपीट, हाथापाई तक की नौबत आ गई और हम लोग किसी तरह से उसको रोका गया। उनको धमकी भी दिए हैं कि मैं तुम्हें देख लूँगा, 40 लड़कों को बुलाऊँगा, ये सब। मैं मेयर से भी ऊपर हूँ, मैं मंत्री से भी ऊपर हूँ। किस दल से वो काउंसलर हैं? टीएमसी से हैं। और मैडम, उनके खिलाफ आपने कोई शिकायत की है? FIR हुआ है। किस थाने में? आसनसोल साउथ थाने में हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद। मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल और पूरे
पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल, एथोड़ा, NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में TVS टू व्हीलर का एकमात्र ऑथोराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल, आसनसोल। आर्य कन्या विद्यालय परिसर में शुक्रवार को द्वारे शिविर लगाया गया था। इस दौरान लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक बेहोश हो गया, उसे पानी की छींटे मारकर होश में लाया गया। 41 नंबर वार्ड के पार्षद रणवीर सिंह भरारा उर्फ जीतू सिंह ने बताया कि यह युवा कतार में खड़ा था, निम्न रक्तचाप होने के कारण वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे वे लोग होश में लाए, अभी वह ठीक है, यदि जरूरत पड़ी तो उसे अस्पताल पहुँचाया जाएगा। हम लोग इसकी देखभाल कर रहे हैं। वो लाइन में खड़ा था, उनका वो लाइन में खड़ा था, उनका BP थोड़ा लो हो गया, उनको लाया गया, पानी पिलाया, अभी ही इज नॉर्मल। आप लोग यहाँ से उनको अस्पताल भेजिए। हॉस्पिटल भेज देंगे, दरकार पड़ेगी तो। कांकसा मुचीपाड़ा शिवपुर के रास्ते में बमुनारा भैरव ताला क्षेत्र में एक हार्डवेयर गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को नियंत्रण में किया। मालिक को करीब 15 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। रिहायशी इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। शुक्रवार को करीब 11:40 पर गोदाम में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने इसे देखा और बुझाने का प्रयास किया। आग की तीव्रता बढ़ने के साथ ही दमकल विभाग को सूचना दी गई। घटना की खबर मिलते ही पहले दमकल की एक गाड़ी और फिर दमकल की दूसरी गाड़ी मौके पर पहुंची। शुरुआत में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही थी। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश की। আগুনটা কটার সময় লেগেছিল? 11:40 কি করে আগুনটা লেগেছে বলে মনে হচ্ছে? খুব সম্ভব শর্ট সার্কিট। আচ্ছা, আন্দাজ করছি তো আমি, কি একটু শর্ট সার্কিট। এই যে কত টাকার জিনিসের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে আপাতত? সেটা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। অসম্ভব, मोटामोटी आप 15 लाख টাকা মতো হবে। वहीं दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि वेल्डिंग के कारण आग लगी है, जबकि गोदाम के एक कर्मचारी ने बताया कि आग 11:40 पर लगी। আচ্ছা, ওয়েল্ডিং এর কারণে যেটা হয়েছে। এখন কি আগুন নিয়ন্ত্রণে
নিয়ন্ত্রণে কতক্ষণে মনে হচ্ছে পুরোটা আপনাদের এই অপারেশন কমপ্লিট হবে? वहीं एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि जब वह मुचीपाड़ा से गुजर रहे थे तो भीषण आग की लपटें देखी। আমি মুচিপাড়া থেকে আসছিলাম, আসার পথে দেখি এখানে ভয়াবহভাবে আগুন জ্বলছে। বামুনহারা থেকে শিবপুর যে রোডটা যাচ্ছে তার পাশে একটা গোডাউন আছে, সেখানে একদম ভয়াবহভাবে আগুন জ্বলছে এবং স্থানীয় মানুষ যারা সাধারণত ছিল তারা সবাই যারা এমনি জল দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু আগুন এত ভয়াবহ ব্যাপক ছিল যেটা ওইভাবে সম্ভব নয়। আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে আশেপাশে এখানে প্রচুর বহুতল আছে, এবং বহুতল এবং এসেন্সিয়াল বাড়িও আছে। তো মানুষের ভয় যে কোনো প্রকারে এই আগুন যদি ছড়িয়ে পড়ে কোনো বহুতলের মধ্যে বা বাড়ির মধ্যে হয়ে যায় তাহলে এখানে কিন্তু একটা বিরাট ভয়াবহ বিপদের সম্ভাবনা ছিল। হাজার হাজার মানুষ হয়তো সে আগুনের কবলে পড়তো এবং মানুষের জীবন হানি হওয়ার চেষ্টা ছিল। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আপনার কি মনে হচ্ছে কী কারণে লাগতে পারে এই আগুন? দেখুন, এটা তো ফায়ার ব্রিগেড যতক্ষণ না তদন্ত করছে সম্পূর্ণভাবে বলা সম্ভব না, কিন্তু আমার যেটুকু ধারণা ফায়ার ব্রিগেডের যেভাবে এত সময় লাগছে এদের শর্ট সার্কিটের ফলে, আদারওয়াইজ এদের নেগলিজেন্সির ফলে, কারণ এদের ফায়ারের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, এরা ফায়ারের কোনো ব্যবস্থা রাখেনি। হ্যাঁ, এত বড় একটা গোডাউন চালাচ্ছে, এদের ফায়ারের ব্রিগেড ফায়ারের এনওসি নেওয়া অবশ্যই দরকার ছিল। पश्चिम बर्धमान जिला AIM नेता दानिश आशीष ने 5 जुलाई 2021 को बराकर फाड़ी में अरमान अंसारी के पुलिस हिरासत में मौत को लेकर प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि घटना के तकरीबन 10 महीने गुजर जाने के बाद भी आज तक दिवंगत अरमान अंसारी के परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। आज के संवाददाता सम्मेलन के दौरान दिवंगत अरमान अंसारी के पिता मोहम्मद कलाम अंसारी भी उपस्थित थे। उन्होंने पत्रकारों के सामने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने उनको कई बार बराकर फाड़ी कुल्टी थाने के चक्कर कटवाए, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। और 9-10 महीना हो गया सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कभी हम कमिश्नर पास जाते हैं, कभी कुल्टी थाना में जाते हैं। इसी तरह दौड़ धूप में जो है हमारा इतना दिन हो गया, उतना ही केस CID के पास है। तो CID के पास है तो इतना दिन हो गया सर, हमारा अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अभी मेरे भाई लोग जो है हमारा साथ दिए हैं, जो कि आपके पास से बोलने का हमको मौका मिला है, ये बहुत बड़ा आभारी है हम लोग का, जो कि हमको यहाँ तक पहुँचाया। हमारा इंसाफ नहीं मिल रहा और हम इसी दरमियान में दौड़ रहे थे। हमको एक बार कोल्टी थाना में लेकर आए बड़ा वो, और वहाँ पर जो है नोटिस आया था, तो नोटिस में आया तो हमको भी उसमें रूम में बुलाया अकेला और पूछा कि आपका तबीयत कैसा? हमने सर मेरा लड़का मर गया, हमारा तबीयत कैसा रहेगा, हम तो अब बोल भी नहीं सकते। तो बोला हाँ ना में जवाब दे दीजिएगा। तो फिर जो है हमने जो है एगो टेबल ड्यूटी में था, वो उसको था अंदर में और हम थे और कोई नहीं था। हमारा जो आदमी था उसको सब बाहर बैठा दिया और वहाँ पर पूछा कि जो आपका लड़का को जब लेकर गया थाना घर से तो कोई नोटिस, कोई कागज़, कोई एप्लीकेशन दिया था? हमने सर कुछ नहीं दिया, हम लोग को मालूम तक नहीं है। और उसको जो है उठा करके ले गया, बस यही पूछा था। फिर दूसरा कागज़ आया दुर्गापुर काशी थाना से, फिर वहाँ पर से गया हम। जाने के बाद में वहाँ पर भी यही बात पूछा कि आपका जो है साथ में कैसे घटना, मतलब सारा दुनिया जान रहा है घटना कैसे हुआ। हमारा पुलिस कस्टडी में हमारा लड़का को जान मार दिया, सारा तो खोज वहीं पर है। हमको तो मालूम तक नहीं है मेरा लड़का को उठा करके लाया, कैसे मारा, किस तरह मारा, तो वही बताएगा। अनीस खान का कांड, सोमल बावरी का, अरमान अंसारी का कांड, अनीस खान का कांड, सोमल बावरी का कांड ऐसा दोबारा ना हो सके, तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है आप मीडिया कर्मी के माध्यम से, पब्लिक से भी और पुलिस प्रशासन से भी और मौजूदा सरकार से भी, कि आप 7 दिनों के अंदर एक बेहतर से बेहतर रिपोर्ट इनका रेडी करें। रिपोर्ट रेडी करने के साथ साथ जो दोषी हैं उन्हें आप दोषी करार देते हुए उन्हें दंडित करें, और अगर उनको आप सस्पेंड करके उनका नौकरी वगैरह या जो भी मुआवजा बनता है अगर वो नहीं आप कर सकते हैं, तो फिर 8वें दिन में पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के निर्देश पे पूरे आसनसोल में कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, और वहाँ खुद अरमान अंसारी के अब्बा मौजूद रहेंगे और इनके मौजूदगी में हम लोग वो धरना प्रदर्शन करेंगे। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना।
वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स, आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। आसनसोल के हृदय स्थल अपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गुराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। बंगाल सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड ने शुक्रवार को 91वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर सिटी नगर स्थित सेंट्रल मॉल में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें आसनसोल दमकल विभाग के प्रभारी देवायन पोद्दार के नेतृत्व में सेंट्रल मॉल के कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए इसका प्रशिक्षण दिया। इस दौरान एक मॉक ड्रिल भी की गई, जिसमें बताया गया कि आग लगने की स्थिति में कैसे खुद को और दूसरों को बचाया जा सकता है, कैसे फायर एक्सटिंग्विशर चलाया जाए, लोगों को जहां आग लगी है उस जगह से कैसे निकाला जाए। आज 51 আমাদের সেফটি উইক আছে, তার জন্য আমাদের সেন্ট্রাল মল থেকে আসানসোল ফায়ার ব্রিগেডকে ইনভাইট করা গেছিল। তো আমি যে চিফ গেস্ট হিসেবে আমি এসেছিলাম, ইনাদের সাথে কিছু সেফটি সংক্রান্ত আলোচনা হয় আমার সাথে। তো হোয়াট ইজ দ্য ফায়ার সেফটি নিয়ে আমি বিশেষ করে ফোকাস করি, যেহেতু আমি ফায়ার গ্রাউন্ড থেকে আছি। ইনাদেরকে টোটাল ফায়ার এক্সটিংগুইশার ইউজ করা আজকে দেখানো হয়, এবং অ্যাট এ টাইম যদি মলে কোনো ফায়ার বা কোনো ইনসিডেন্ট হয়ে যায় তখন তাদের কি কর্তব্য থাকবে সেটা তাদেরকে জানানো হয়। ইভাকুরেট করে কি করে তারা মল থেকে বেরিয়ে আসবেন সেটাও দেখানো হয়, এবং লাইভ ফায়ার, একটা ডিজেল পেট্রোল ফায়ার এবং एलपीजी गैस सिलेंडर फायर होले तारा की करे एक्सटिंग्विश करबेन, तारा एखाने सेटा आमादेर थेके प्रशिक्षित हन। इस मौके पर सिटी नगर के हेड ऑफ ऑपरेशंस विनय चौधरी ने बताया कि आज से 91वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। यह कार्यक्रम 10 मार्च तक होगा। हमारे यहाँ पे हर साल की तरह हम लोग फायर एंड सेफ्टी वीक मनाते हैं, और इसमें हम लोग अपने आसनसोल के जो ऑफिसर इंचार्ज है फायर डिपार्टमेंट के, वो आते हैं यहाँ पे, हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं और उनके साथ रूबरू होते हैं, उनको अपना आगे का कार्यशाली के बारे में अवगत करवाते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस तरह सेफ्टी के नॉर्म्स आपने फॉलो करने काम करते हुए फायर अगर लग जाए किस तरह का इंसिडेंट को रोकना है, उसको किस तरह से कस्टमर्स की सेफ्टी को यहाँ पे हमने बरकरार रखना है।
और कैसे फायर फाइटिंग करनी है बेसिकली, और सुरक्षित रखने के लिए पूरी टाउनशिप को। पश्चिम बर्धमान जिला बंग जननी तृणमूल कांग्रेस की जिला अध्यक्ष अल्पना बनर्जी ने शुक्रवार को आसनसोल स्थित बंग जननी कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जिला कमेटी की तमाम पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सह मेयर विधान उपाध्याय, भावी उप मेयर अभिजीत घटक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, पार्षद देवाशीष सरकार, मौसमी बसु समेत काफी संख्या में बंग जननी की कार्यकर्ता उपस्थित थी। इस दौरान अल्पना बनर्जी ने कहा कि आगामी 22 मार्च को कोलकाता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पश्चिम बर्धमान जिले की तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहेंगी। 22 सेप्टेम्बर कलकाताते पश्चिम बर्धमान जिलार जन्य बंगजननी तृणमूल कांग्रेसेर पक्ष थेके आमादेर राज्य सभानेत्री माला राय, आमादेर 4 जन वर्किंग प्रेसिडेंट सीके रेशमा, लक्ष्मी माहातो, रीना मुखार्जी और लक्ष्मी घोष सह আমাকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমাদেরকে হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন তিনি, এবং তিনি জানান যে পশ্চিম বর্ধমান জেলা অনেক বড় জেলা, জেলার পুরোটা সাজিয়ে জেলা কমিটির মিটিং ডেকে সেখানে জেলা সভাপতিকে ডেকে সমস্ত আমাদের যারা পোস্ট পেল, যারা জেলাটাকে সামলাবে, শুধু জেলা কমিটির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারগুলো আজকে দেওয়া। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को समाजवादी पार्टी का प्रचार करने के लिए वाराणसी गई थी। इस दौरान गंगा दशमेश घाट जाने के क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को घेर कर उन्हें काला झंडा दिखाया और ममता बनर्जी गो बैक का नारा भी लगाया। इस घटना की तपिश शुक्रवार को शिल्पांचल के कई जगहों पर देखने को मिली, जब आसनसोल कल्ला स्थित काजी नजरुल विश्वविद्यालय के गेट पर तृणमूल छात्र परिषद के सदस्यों ने इस घटना की तीव्र निंदा करते हुए प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी को कन्याश्री के लिए यूएन का तरफ से अवार्ड दिया गया, आज उसी ममता बनर्जी को आप काला झंडा दिखा रहे। आपने काला झंडा ममता बनर्जी को नहीं दिखाया है, बल्कि आपने काला झंडा हिंदुस्तान के उस आवाम को दिखाया है जो बेटी को बचाना चाहते हैं, बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज देखिए, आज यूक्रेन में हमारे जो नवीन को तो बचा नहीं सकी ये सरकार, और यूपी में जो है काला झंडा दिखा रही ममता बनर्जी को। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं डीपीएस आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, PSJ TVS,